Hello students, today we are going to see English lesson number 1.6, the peacock and the crane. Peacock you know very well and crane is also a bird. Peacock तो आप सब लोगों को पता है और crane ये जो है तो ये भी एक bird है. So this story is related to the peacock and the crane. It is a short story. Actually it is a fable. Fable है ये. Fable क्या होता है? In that fable, it is animals and birds. They are treated just like human beings. उनको human beings की तरह treat किया जाता है. जैसे कि हम जो human beings बात कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. In the same way, ये जो fable होता है, fable में ये लोग एक दूसरे के साथ बात करते हुए बताए जाते हैं. So they can talk here. Now in this story, this crane as well as the peacock, they both are talking with each other. So let us begin. There was once a very conceited peacock who had a gorgeous tail like no other bird. Conceited. See what is the meaning of conceited? Conceited means to be proud. जो बहुत ही प्राउड होते हैं या अरोगेंट होते हैं आर कॉल्ड एज अरोगेंट, आर कॉल्ड एज conceited. So here the peacock is there and he had a very gorgeous tail. Conceited peacock था, बहुत ही प्राउड peacock था and उसके पास जो है तो बहुत ही gorgeous beautiful. Gorgeous means very beautiful. Like no other bird. So there was one peacock. He was very conceited and he had a very gorgeous tail like no other bird. When he met a crane one day, the peacock scoffed at the crane's colorless and dull feathers. So once, what happened? This peacock met a crane, and that crane had a very colorless and dull feathers. Feathers पंख. तो ये जो peacock है ये किसको मिला? crane से मिला. And that crane had very colorless, एकदम ही colorless उसके feathers थे, पंख थे. And immediately spread his own colorful tail for the crane to see and admire. जैसे ये पिकॉक जो है, पिकॉक जब इस क्रेन के सामने आया तो उसने क्या किया? ही स्प्रेड हिज ओन कलरफुल टेल. तो क्रेन के सामने पिकॉक आ गया और उसके बाद में पिकॉक जो है तो क्रेन के जो फीदर्स थे, जो पंख थे वो कैसे थे? कलरलेस थे. और ये जो पिकॉक था, पिकॉक के पास कैसे जो पंख थे, टेल कैसी थी? उसकी बहुत ही कलरफुल थी. तो जैसे ही पिकॉक क्रेन के सामने गया तो उसको थोड़ा चिढ़ाने के लिए उसने क्या किया? He spread his own colorful tail for the crane to see and admire. तो ये जो पिकॉक है तो पिकॉक ने उसके सामने जाकर अपनी जो टेल है वो स्प्रेड कर दी ताकि क्रेन देखे और क्रेन को बुरा लगे कि देखो पिकॉक के पास कितने कलरफुल टेल है और मेरी जो टेल है, मेरे जो पंख है, मेरे पंख तो कलरफुल है ही नहीं. Look at my feathers. He boosted मतलब बढ़ाई करना. बढ़ाई जब मारते हैं ना तो उसको boosted कहते हैं. BOASTED. So he said to the crane. Who? Peacock said to the crane, look at my feathers. He boosted. How they shine in all colors of the rainbow. See my tail. See the color of my tail. How it is shining just like colorful rainbow. While yours are so pale. Pale means dull. और क्रेन से कहा कि तुम्हारे जो फीदर्स है वो देखो कितने डल है और मेरे देखो कितने रेनबोज के कलर के मेरे क्या है? टेल है. I am dressed like a king. And so because of this colorful rainbow like tail, I look just like a king. That's true. The crane answered. देखो आप कोई हमारे सामने बढ़ाई जब मारता है और हमें वो सब क्वालिटीज नहीं होती है तो हमें ऑब्वियसली बुरा लगता है. तो यहाँ पर जो क्रेन है, he felt very sad. He was very sad.
बिकॉज ऑफ दिस बूस्टिंग ऑफ दिस पीकॉक। पीकॉक उसके सामने आकर अपने कलरफुल टेल का क्या कर रहा था, नुमाइश कर रहा था। तो ये देखकर क्रेन को बुरा तो लगा, लेकिन देखो क्रेन ने यहाँ पर क्या कहा, दैट्स ट्रू, हाँ सच है, बिल्कुल सच है, तुम एकदम किंग के जैसे हो, तुम्हारे कलरफुल क्या है, टेल है, वेरी नाइस। द क्रेन आंसर, बट आई कैन फ्लाई हाई अबाउ among the clouds and the stars. What the crane said to the peacock? Yes, there is no doubt that you are so beautiful, your feathers are so beautiful, very nice, they look like rainbow. Now you are just like any king. But what he said, I can fly high above among the clouds and the stars. What I can do? I can fly high above in the sky amongst the clouds and stars. मैं ऊंचाई तक क्या कर सकता हूँ, उड़ सकता हूँ स्काई में, क्लाउड्स के बिटवीन, स्टार्स के बिटवीन मैं क्या कर सकता हूँ, among them I can fly and I can see all the beauty of the earth in all its glory. और इसी के साथ ऊंचाई तक उड़ने की वजह से आई कैन सी ऑल द ब्यूटी। देखो ऊंचाई पर अगर हम जाते हैं तो नीचे की सब ब्यूटी हमें बहुत सुंदर दिखाई देती है, अर्थ पर जो ब्यूटी होती है तो वो बहुत हमें अच्छी दिखाई देती है। तो क्रेन ने कहा कि जब मैं ऊंचाई तक उड़ता हूँ, आई कैन सी ऑल द ब्यूटी ऑफ द अर्थ इन ऑल इट्स ग्लोरी। वाई? ग्लोरी मीन्स हैप्पीनेस। वाई? यू लिव डाउन हियर जस्ट लाइक एनी अदर कॉक। और मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, क्रेन ने कहा मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, बट यू कैन फ्लाई हाई अबाउ इन द स्काई। तुम स्काई में ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते और इसी की वजह से तुम सिर्फ नीचे धरती पर ही रहते हो, जस्ट लाइक एनी अदर कॉक। पीकॉक को उसने क्या कहा कि दूसरे जो कॉक है, जो दूसरे जो कॉक होते हैं, बस उनकी तरह, कॉमन कॉक्स की तरह तुम क्या करते हो, यहाँ पर रहते हो, तुम ये सब ब्यूटी, अर्थ की जो ब्यूटी है वो देख नहीं सकते। एंड लास्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट सी, फाइन फीदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स। वेरी नाइस। तो यहाँ पर लास्ट में कहा गया है फाइन फीदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जिसके पास ब्यूटी है, जिसके पास फाइन फीदर्स है, बर्ड के बारे में यहाँ पर बताया गया है, दोज बर्ड्स हु हैव फाइन फीदर्स, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर फाइन बर्ड्स। तो फाइन फीदर्स है, कलरफुल फीदर्स है, इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वो बर्ड बहुत ही अच्छा बर्ड है, नॉट लाइक दैट। अब क्रेन के पास तो कलरफुल फीदर्स नहीं थे, बट स्टिल उसके जो पंख थे, वो उसके पंख उसे किसके लिए हेल्प करते थे, टू फ्लाई हाई अबव इन द स्काई। तो इसके लिए वो क्रेन के जो कलरलेस फीदर्स थे वो भी उसके लिए बहुत ही काम के थे। सो यहाँ पर हम ऐसा भी बोल सकते हैं दैट एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो चीजें होती हैं, चमकने वाली चीजें, हर एक चमकने वाली चीज गोल्ड नहीं होती। तो इसी तरह से जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो ब्यूटीफुल थिंग है वो हमारे काम की ही हो। तो जरूरी क्या है कि अगर वो ब्यूटीफुल नहीं है फिर भी वो हमारे लिए काम की होनी चाहिए। और इसी तरह से जो है बच्चों, वी शुड नॉट सी द एक्सटर्नल ब्यूटी। हमें एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं देखनी चाहिए, बट वी शुड फोकस ऑन द गुड क्वालिटीज। कोई भी पर्सन है, देखो लाइफ में, आपके लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, तो आप क्या करते हो, उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस से क्या करते हो, उसको जज करते हो। सो यू डोंट हैव टू जज एनी पर्सन फ्रॉम हिज और हर एक्सटर्नल अपीयरेंस। उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस पे बिल्कुल मत जाओ, बट यू हैव टू फोकस। आपको किस पर फोकस करना है, किस पर ध्यान देना है, द गुड क्वालिटीज इन दैट पर्सन। उस पर्सन में आपको देखना है कि कितनी अच्छी क्वालिटीज है, तो उसके हमेशा गुण देखो, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस मत देखो। ऊपर का दिखावा किसी काम का नहीं होता है, तो अंदर की हमें क्या देखनी है, सच्चाई देखनी है, अच्छाई देखनी है और अच्छे गुण देखने हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव लव दिस लेसन। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी ऐसा मुझे लगता है। ओके, थैंक यू।